حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ سال نو کی تقاریب میں پولیس کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے، بصورت دیگر سخت کارروائی کی جائے گی، کمشنر پولیس VC سجنار کا انتباہ۔ شہر کی جامع ترقی کا منصوبہ تیار کیا جائے، 5 سالہ ایکشن پلان بنانے پر زور۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا زونل کمشنران کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ سرکاری ملازمین کے زیر التوا بلز کے 713 کروڑ روپے کی اجرائی، ڈپٹی CM بٹی وکرمارگا کی ہدایت پر فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کی بلز کی عملداری۔ تلنگانہ میں SIR کروانے کا ریاستی بھاجپا صدر رام چندر راؤ کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ، ووٹر لسٹ میں پاکستانی و بنگلہ دیشی ناموں کی موجودگی کا کیا دعویٰ۔ درگم چیرو جھیل کے اطراف 5 ایکڑ اراضی سے ناجائز قبضے ختم، ہائیڈرا کی کارروائی، ان آربٹ مال کے قریب پارکنگ کے ذریعے ماہانہ 50 لاکھ روپے کی کمائی کی جانے والی زمین کی واپسی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سٹی پولیس کی جانب سے سال نو کی تقاریب اور جشن کے دوران قانون کی خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ نئے سال کا جشن رات 1 بجے ختم کر دینے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ شام 7 بجے سے ڈرنک اینڈ ڈرائیو مہم شروع کر دی گئی۔ کمشنر پولیس حیدرآباد VC سجنار نے اس سلسلے میں سخت احکام جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی جانب سے نئے سال کا جشن منانے جو ہدایات اور رہنما خطوط جاری کیے گئے ہیں، ان کی بہتر صورت پابندی کی جانی چاہیے اور خلاف ورزیوں پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ کمشنر پولیس نے آج ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد کرتے ہوئے سٹی پولیس کے عملے کو ہدایت دی کہ وہ سال نو کے جشن کے دوران حالات پر گہری نظر رکھیں۔ کمشنر پولیس نے دیگر عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس بھی منعقد کی اور کہا کہ قوانین کی خلاف ورزی کی کسی کو بھی اجازت نہ دی جائے اور شہری حدود میں حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کی چیکنگ کی جائے اور کوئی نشہ میں پایا جائے تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ حیدرآباد کمشنر پولیس VC سجنار نے سال نو کے موقع پر شہر میں کیب اور آٹو ڈرائیورز کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی سواری کو بٹھانے سے انکار کرنا یا مقررہ بکنگ سے زائد رقم کا مطالبہ کرنا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کمشنر پولیس نے اپنے ٹویٹر پیغام میں واضح کیا کہ اس طرح کی شکایات موصول ہونے پر متعلقہ ڈرائیورز کے خلاف موٹر وہیکل ایکٹ کے تحت سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ اگر انہیں آٹو یا کیب سروس کے دوران کسی بھی قسم کی پریشانی یا غیر قانونی رویے کا سامنا ہو تو فوری طور پر پولیس کو اطلاع دیں۔ کمشنر پولیس نے کے مطابق متاثرہ شہری گاڑی کا نمبر، واقعے کا وقت اور مقام، رائڈ کی مکمل تفصیلات اور اسکرین شاٹ حیدرآباد پولیس کے واٹس ایپ نمبر پر ارسال کریں تاکہ بروقت کارروائی کی جا سکے اور عوام کو بہتر سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ نئے سال کی آمد سے قبل امن و امان کو یقینی بنانے کے مقصد سے حیدرآباد پولیس نے اولڈ سٹی میں ایک بڑے پیمانے پر بائک ریلی اور بائک پیٹرولنگ مہم کا انعقاد کیا۔ ساؤتھ زون پولیس حیدرآباد سٹی پولیس کی جانب سے شروع کی گئی اس ریلی کی قیادت DCP کرن کھارے پربھاکر نے کی۔ اس موقع پر DCP نے عوام کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ شراب نوشی کے بعد ڈرائیونگ، خطرناک سٹنٹس اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نئے سال کی تقریبات کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی روک تھام اور عوامی نظم و ضبط کی برقراری کے لیے اولڈ سٹی سمیت حساس علاقوں میں پولیس کی نگرانی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس عہدیداروں نے واضح کیا کہ یہ بائک ریلی عوام میں اعتماد پیدا کرنے اور شرپسند عناصر کو سخت پیغام دینے کے لیے نکالی گئی ہے تاکہ شہری بلا خوف و خطرہ نئے سال کا استقبال کر سکیں۔
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि शहर हैदराबाद की जामत तरक्की के लिए हुकूमत ने तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर हैदराबाद की तरक्की के लिए 5 साल एक्शन प्लान तैयार करें। एक जामा मंसूबा बनाया जाए ताकि शहर की हकीकी मानों में तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। चीफ मिनिस्टर ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तौसी के ज़िम्मन में बल्दी नज़्म व नस्क के ओहदेदारों के साथ आला सतही इजलास मुनाक़द करते हुए ORR के अंदरूनी हुदूद में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम जोनल कमिश्नरान को हिदायत दी कि वो रोजाना अवाम के दरमियान जाएं और इनके मसाइल से वाकफियत हासिल करें और शहर की तरक्की पर इनकी तजावीज़ हासिल की जाएं। और चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि वो खास तौर पर कचरे की नक्कासी और आलूदगी को रोकने के इक़दाम पर तवज्जो दे। हाइड्रा, जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के महकमाजात को जनवरी से नालों की सफाई और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करने चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने स्ट्रीट लाइट्स के निज़ाम बेहतर बनाने की हिदायत दी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन के ज़ेर इल्तिवा बिल्स के तौर पर 713 करोड़ रुपए की इजराई अमल में लाई गई है। इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने अहकाम जारी किए और फिर महकमा फाइनेंस के ओहदेदारों की जानिब से ज़ेरे इल्तिवा बिल्स की इजराई के तौर पर 713 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजिमीन की ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, रुखसत और एडवांस की रकूमात के तौर पर ये बिल्स जारी किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने हर माह 700 करोड़ रुपए की इजराई का मुलाजमीन को तयक़ुन दिया था। माह जून तक जुमला 183 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। तहम माह अगस्त से माहाना 700 करोड़ रुपए सरकारी मुलाजमीन के ज़ेरे इल्तिवा बिल्स के तौर पर जारी किए जा रहे हैं, जिससे मुलाजमीन को देरीना वाजिबात की वसूली में मदद मिल रही है। माहाना रकूमात की इजराई किसी रुकावट के बगैर जारी है। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने तेलंगाना में इंतखाबी फहरिस्तों की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन से खुसूसी नजरसानी यानी SIR पर अमलावारी का मुतालबा करते हुए इल्जाम आयद किया है कि हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में पाकिस्तान, बांग्लादेश और रोहिंग्या से ताल्लुक रखने वाले अफराद के नाम गैर कानूनी तौर पर फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए ज़रूरी है कि फहरिस्त राय दहिंदगान को नक़ाइस से पाक किया जाए और गैर कानूनी वोटर्स के नाम खारिज किए जाएं। रामचंद्र राव ने बताया कि बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर नितिन नबीन से मुलाकात के दौरान तेलंगाना में पार्टी की तंजीमी सूरत हाल का जायजा लिया गया और मुकामी इदारों के इंतखाबात से कबल पार्टी को निचली सतह पर मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर आइंदा माह जनवरी में तेलंगाना का दौरा करेंगे, जिससे कारकुनों में नया जोश व खरोश पैदा होगा। रामचंद्र राव ने असेंबली का सरमाई इजलास कम से कम 1 माह तक जारी रखने का मुतालबा करते हुए कहा कि इससे अवामी मसाइल पर तफसीली बहस मुमकिन होगी। साथ ही उन्होंने BRS सरबराह KCR को मशवरा दिया कि वो जमहूरियत और हुकूमत को जवाबदेह बनाने के लिए पाबंदी के साथ असेंबली इजलासों में शिरकत करें। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि बीजेपी आइंदा मजालिस मुकामी और ग्रेटर हैदराबाद के इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि 1 जनवरी से कौमी रोड सेफ्टी माह का आगाज हो रहा है और इसमें हर शहरी को हिस्सा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से तमाम अजला, मंडलों और देहातों में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक रोड सेफ्टी महीने का आगाज किया जा रहा है। आवाम को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी के उसूलों से आवाम को वाकिफ करवाया जाएगा ताकि आवाम इन पर अमल कर सकें। उन्होंने कहा कि हर स्कूल को रोड सेफ्टी क्लब में शामिल होने की भी अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि आवाम को चाहिए कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो कुछ भी हिदायत जारी की जाती हैं, इन पर अमलवारी की जाए। हेलमेट पहनकर 2 व्हीलर गाड़ियां चलाई जाएं, शराब के नशे में गाड़ी ना चलाएं और ना ही रॉन्ग साइड ड्राइविंग की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत में सड़क हादसात में और इनमें अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है, इससे आवाम को एहतियात बरतने की जरूरत है। తెలంగాణ రవాణా శాఖ పక్షాన జాతీయ భద్రతా మాసోత్సవాలను పురస్కరించుకొని జనవరి 1 నుంచి 31 తారీఖు వరకు
రహదారి భద్రతా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ప్రతి జిల్లా, ప్రతి మండలం, ప్రతి గ్రామంలో. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్షాన రాష్ట్ర రవాణా మంత్రిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. తప్పకుండా ఈ కార్యక్రమాలు 31 రోజుల పాటు జరిగే కార్యక్రమాల లోపల పాల్గొనండి. ప్రతి విద్యార్థి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో ఒక హామీ పత్రం, రోడ్డు భద్రత వారోత్సవాలు, రోడ్డు భద్రతను పాటిస్తామని ఒక హామీ ఇవ్వండి. అదేవిధంగా ప్రతి పాఠశాల రోడ్డు భద్రతకు సంబంధించినటువంటి ఒక క్లబ్లో జాయిన్ కాండి. రవాణా శాఖ తరఫున సూచనలు పాటించండి. హెల్మెట్ ధరించండి, మద్యం దాగి నడపకండి. అదేవిధంగా రోడ్డు సిగ్నల్స్ను, జెబ్రా లైన్స్ను కరెక్ట్గా పాటించండి. రాంగ్ రూట్లో ప్రయాణం చేయకండి. అతివేగం మంచిది కాదు, త్రాగి నడపడం మంచిది కాదనేటువంటి ప్రధాన సూత్రాలతోటి ఒక ప్రాణం విలువను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది రవాణా శాఖ. నిన్న కూడా తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ చనిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్యలో మరణాలు రోడ్డు యాక్సిడెంట్ల వల్లనే ఎక్కువ చనిపోయినటువంటి సంఖ్య చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి దృష్ట్యా రవాణా శాఖ తీసుకునే ఈ కార్యక్రమం లోపల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు, ప్రజలు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా భాగస్వామ్యమై రోడ్డు భద్రత మాసోత్సవాల లోపల మీ భాగస్వామ్యాన్ని ఇచ్చి ప్రాణాలకు రక్షణగా, ప్రజలకు ఒక మంచి రహదారి రక్షణ ఉండే విధంగా భాగస్వాములు కావాలని రాష్ట్ర రవాణా శాఖ మంత్రిగా ప్రజలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. सदर तेलंगाना जागृति कल्वा कुंटल कविता ने कहा कि करीमनगर की सरजमीन से शुरू होने वाली हर तहरीक कामयाब रही है और अब तेलंगाना जहदकारों को इंसाफ दिलाने की ये जद्दोजहद भी कामयाबी से हमकिनार होगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रियासत जहदकारों की कुर्बानियों, भूख, मुशक्क़त और अवामी तहरीकों के नतीजे में हासिल हुई, मगर अफसोस के हुकूमत ने जहदकारों से किए गए वादे पूरे नहीं किए। कविता ने मुतालबा किया कि तहरीक के कारकुनों के लिए फौरी तौर पर पेंशन, फलाही बोर्ड और फी गज 250 गज अराजी फराहम की जाए और शोहदा के खानदानों की मुकम्मल इज्जत अफजाई की जाए। कविता ने ऐलान किया कि ये तहरीक सिर्फ करीमनगर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरे तेलंगाना में इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हुकूमत वादों पर अमल नहीं करती। कविता ने वाज़ेह किया कि नई कमेटियों के नाम पर वक्त गुजारी कबूल नहीं की जाएगी और जहदकारों के फोरम की फहरिस्त के मुताबिक ही शनाख्त होनी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत के झुकने तक ये पुरअमन मगर मजबूत जद्दोजहद जारी रहेगी और तेलंगाना जहदकार अपने इत्तेहाद के बल पर जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। ఆలస్యమైనా సరే ఇప్పటికైనా ప్రతి జిల్లాలో ఉద్యమకారులు ఐక్య వేదికగా ఏర్పడ్డారు. ప్రతి జిల్లాలో ఉద్యమకారులు ఒక ఫోరంగా ఏర్పడ్డారు. మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అందరూ కూడా ఫోరంగా ఏర్పడి ఒక దగ్గరికి వచ్చారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మన ఐక్యతను ప్రదర్శిద్దాం. ఈ ఐక్యతను ప్రదర్శించడం అంటే రెండే రెండు అంశాలు. మనం ఆత్మగౌరవం కూడా కావాలి, మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో వాటా కూడా కావాలి. ఏం వాటా కావాలి? మీరు చెప్పిందే అడుగుతున్నాం. మీరు చెప్పిందే అడుగుతున్నాం, ఎక్కువ అడుగుతలేం. ఉద్యమకారులం 250 గజాలు ఇస్తామన్నారు, అవే ఇవ్వమంటున్నాం. పెన్షన్ ఇస్తామన్నారు, అవే ఇవ్వమంటున్నాం. సంక్షేమ బోర్డు పెడతామన్నారు, అదే పెట్టమంటున్నాం. అంతకన్నా ఒక ఇంచు కూడా ఎక్కువ మేము हैदराबाद में सदरन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी IAS की क़ियादत में शुरू किए गए प्रजा बाटा प्रोग्राम के तहत अवामी बरक़ी मसाइल की मौसर यकसुई अमल में लाई गई है, जिसके मुस्बित नताइज सामने आए हैं। साल 2025 में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के तहत ओहदेदार हर हफ्ता मंगल, चारशुमा और हफ्ते को सुबह 8 बजे मुख्तलिफ इलाकों, कॉलोनियों और देहातों का दौरा करते हुए अवाम से बराह रास्त मुलाकात करके बरक़ी मसाइल की समाअत कर रहे हैं। मुशर्रफ फारूकी के मुताबिक इस मुहिम के दौरान एक साल में मजमूई तौर पर 1800 बरक़ी मसाइल हल किए गए, जिनमें बरक़ी खंभों और ख़तरनाक लाइनों से मुताल्लिक़ शिकायत भी शामिल हैं, जबकि तंग गलियों और गुंजान आबादियों में 800 किलोमीटर पर फैली बरक़ी लाइनों को दुरुस्त किया गया। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की तनसीब के लिए नई पॉलिसी नाफिज की गई है, जिसके तहत अब बरक़ी खंभों पर ही ट्रांसफार्मर नस्ब किए जा रहे हैं, जिससे आवाम को ज़मीन फराहम करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। रियासत में 304 मुकामात पर 150 ट्रांसफार्मर्स नए सिस्टम के तहत नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि आइंदा दिनों में मजीद 6500 ट्रांसफार्मर्स नस्ब करने का मंसूबा है। इमाम ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए याखुतपुरा हल्के में IRT गाड़ियों की खिदमत का आगाज कर दिया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की हिदायत पर ये गाड़ियाँ सड़कों से मलबा उठाने,
केच पिट्स की मरम्मत और गड्ढों को भरने के लिए मुतहरिक होंगी। 1 जनवरी से मई के आखिर तक फाल रहने वाली ये सहूलत एमआईएम के काउंसलर्स और प्राइमरी यूनिट मेंबरान की माविनत के साथ अवामी शिकायत के फौरी और तेज़ रफ्तार हल को यकीनी बनाएगी। अवामी हलकों में इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया जा रहा है क्योंकि ये शहरी सहूलियात में बेहतरी और बरवक्त मरम्मत के कामों को यकीनी बनाएगा। के तमाम कारपोरेटर डिवीज़न के अंदर IRT का जो टेंडर हुआ है उसके अंदर तमाम गाड़ियां अलॉट हुए हैं। इनका मेन काम ये रहेगा हर डिवीज़न के अंदर जहां पर भी कैच पिट यानी जो चौकनी मेनहोल होता उसकी रिपेयरिंग करेंगे और जहां जहां पे भी अगर रोडों के डैमेज है पॉट होल्स है तो वो पॉट होल्स फिल करेंगे और रोडों के कॉर्नर में अगर कहीं डिब्रीज पड़ी हुई है तो डिब्रीज लिफ्ट करेंगे। ये टेंडर जो है 1 जनवरी से लेके मई एंड तक ये टेंडर रहेगा जिसके अंदर कहीं भी हर डिवीज़न के अंदर जहां पर भी हमारे ज़िम्मेदार है पार्टी के कारपोरेटर्स है या कोई भी रहेंगे उन लोग भी आइडेंटिफाई करेंगे तो वो काम को फास्ट कराने के लिए टेंडर हुआ है और वो तमाम गाड़ियां आज आके रिपोर्ट करें जिसका इनाग्रेशन मैं मेरे साथ में याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कारपोरेटर्स तलाब चिंचलम के डॉक्टर समीना मैडम, डबिलपुरे के अलमदार वालेजाई साहब, कुरमागुड़े के नुमाइंदा कारपोरेटर शफाहत साहब, रेन बाज़ार के कारपोरेटर जनाब वासिफुद्दीन साहब और दीगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी के अंदर आज गाड़ियों को झंडा बताया गया, फ्लैग ऑफ किया गया है। इंशाल्लाह कल सुबह से ये तमाम गाड़ियां फील्ड पे रहेंगे और हमारे ज़िम्मेदार इसको पूरा देखकर ये कामों को अंजाम देंगे। आज के इस प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवेंद्र साहब और उनकी पूरी टीम डिप्टी AES सारे के सारे मौजूद थे। मैं तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर, उनकी नुमाइंदगी के ऊपर ये जो गाड़ियों का काम अंजाम आया है और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नलगुंडा चौराहा ता ओवैसी जंक्शन राहदारी को माह अप्रैल तक कारकर्द बनाने का फैसला किया गया है। कमिश्नर GHMC मिस्टर RV कन्नन ने नलगुंडा चौराहा ता ओवैसी जंक्शन तामीर किए जाने वाले फ्लाईओवर के तामीराती कामों का जायजा लिया। ये फ्लाईओवर सईदाबाद और IS सदन से ओवैसी जंक्शन तक तामीर किया जा रहा है। इसे जुनूबी हैदराबाद के इलाके में ट्रैफिक के बहाव में रुकावटों को दूर करने के लिए तामीर किया जा रहा है। ये फ्लाईओवर 2.35 किलोमीटर तवील है और इसकी तामीर 620 करोड़ रुपए की लागत से अमल में लाई जा रही है। कमिश्नर GHMC को मुताला किया गया, इसकी 80% तामीराती काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर GHMC ने इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के हमरा मौके पर पहुंचकर कामों का शख्सी तौर पर मुआयना किया और रफ्तार में तेजी लाते हुए मुकर्ररा मुद्दत तक तकमील की हिदायत दी और इस बात को यकीनी बनाएं कि माह अप्रैल तक इस राहदारी को अवाम के लिए खोला जा सके। उन्होंने कहा कि सर्विस रोड्स के लिए ट्रैफिक का रुख मोड़ने और अराजियात हासिल करने के कामों को भी तेज किया जाना चाहिए। तेलंगाना में बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा दर्ज किया गया है, जहां तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने साल 2026 के दौरान मजमूई तौर पर 199 बदउनवानी के मुकदमा दर्ज करते हुए 273 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया है, जिनमें बड़ी तादाद सरकारी मुलाजमीन की है। ACB की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 157 ट्रिप केसेस में 224 अफराद को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, जबकि 15 मुकदमात गैर मुतनासिब असासजात से मुताल्लिक़ दर्ज किए गए और दिगर संगीन बदउनवानी के 26 केसेस भी सामने आए हैं। कार्रवाइयों के दौरान 57 लाख रुपये से जायद रकम जब्त की गई, जिनमें से बेशतर रकम मुतासरा शिकायत कुनिंदगान को वापस की गई, जबकि गैर मुतनासिब आसासों के केसेस में तकरीबन 96 करोड़ रुपये मालियत की जायदादों का इंकशाफ हुआ। एंटी करप्शन वीक के मौके पर बदउनवानी के खिलाफ अवामी शिरकत को मजबूत बनाने के लिए QR कोड पर मबनी शिकायती निज़ाम का भी आगाज किया, जो महफूज
तेज रफ्तार और शहरियों के लिए निहायत सहल है। इस निज़ाम के जरिए बिलखुसूस दूर दराज इलाकों में रहने वाले अवाम अब महज QR कोड स्कैन करके रिश्वत या बदउनवानी से मुताल्लिक़ अपनी शिकायत बराह रास्त ACB तक पहुंचा सकते हैं, जबकि शिकायत कुनिंदगान की शनाख्त को मुकम्मल तौर पर राज में रखा जाएगा। हाइड्रा की जानिब से दुर्गम चेरू झील के अतराफ 5 एकड़ अराजियात पर नाजायज कब्जाजात को बर्खास्त कर दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि 160 एकड़ अराजी पर फैली हुई दुर्गम चेरू झील अब महज 116 एकड़ तक महदूद हो गई है। हाइड्रा की जानिब से कार्रवाई करते हुए माधापुर और इनऑर्बिट मॉल के करीब 5 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जाजात को बर्खास्त करवा दिया गया है। इस अराजी पर गाड़ियां पार्क करते हुए कब्जे की कोशिश की जा रही थी और पार्किंग के जरिए माहाना 50 लाख रुपए कमाए जा रहे थे। हाइड्रा की जानिब से दुर्गम चेरू के अतराफ की मज़ीद अराजियात पर कब्जाजात को बर्खास्त करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर इनऑर्बिट मॉल के करीब 5 एकड़ अराजियात पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त कर दिया गया है। यहाँ अराजी पर मिट्टी डालने का सिलसिला भी रोक दिया गया है और पार्किंग को भी बर्खास्त करवा दिया गया है। यहाँ पार्किंग में रखी गई गाड़ियों को भी हटा दिया गया है। हाइड्रा की जानिब से अब इस अराजी को साफ करने की कोशिश भी की जा रही है, जबकि कहा गया है कि प्रजावाणी प्रोग्राम में दर्ज करवाई गई शिकायत के बाद हाइड्रा की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। हैदराबाद में मंशियात की मुमकिना फरोख्त और इस्तेमाल का सुराग लगाने के लिए नार्कोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने शहर के पब, बार, क्लब्स और पार्टी के मुकामात पर बड़े पैमाने पर छापामार कार्रवाइयां करने का फैसला किया है, जिसके लिए खुसूसी टीमें मुतय्यन कर दी गई हैं। DCP वैभव गायकवाड़ा के मुताबिक इस मुहिम के तहत सिटी आर्म्ड रिजर्व पुलिस खुसूसी तरबियत याफ्ता 5 रुकनी नार्कोटिक स्नेफर डॉग स्क्वाड और मुतअद्दिद क्लस्टर टीमें तैनात की गई हैं, जो इदारों की नज़्म व नक्श को या सरपरस्तों को किसी किस्म की तकालीफ पहुंचाए बगैर मोहतात अंदाज में जांच कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक इन कार्रवाइयों के दौरान एक नाइजीरिया के शहरी को हिरासत में लिया गया है और तहकीकात की बुनियाद पर इसके खिलाफ मुमकिना मुल्क बदरी समेत कानूनी कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है। पुलिस टीमें शनाख्तशुदा हाई फुटबॉल तफरीही मुकामात पर फर्जी और इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के तहत सरगर्म हैं, जहां मशकूक अफराद की स्क्रीनिंग के लिए फौरी डार्क टेस्ट किट्स इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि पोशीदा मंशियात की निशानदही के लिए नार्कोटिक स्नेफर कुत्तों की मदद ली जा रही है। पुलिस हुक्काम ने बताया कि ये इक़दाम बड़े पैमाने पर तकारीब के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने और अवामी मुकामात को महफूज बनाने के लिए पुलिसिंग की एक फाल और मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसकी क़ियादत नार्कोटिक इन्फोर्समेंट विंग टास्क फोर्स सीनियर ओहदेदारों की निगरानी में कर रही है। मदीना मस्जिद मंडल बेला ज़िले आदिलाबाद में हाल ही में एक पुरविखार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इमाम व खतीब मुफ्ती मोहम्मद नियाज अहमद कासमी अशरफी की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात की मौजूदगी ने महफिल की रौनक को दोबाला कर दिया। खास तौर पर एजाज भाई और तनवीर खान की शिरकत को खुसूसी अहमियत हासिल रही। तकरीब के दौरान मुश्ताक कुरैशी और रफ़ीक खान ने मुफ्ती कासमी की खिदमात को सराहा, जबकि दिल्ली से आए समेत भाई ने भी मोहब्बत और खुलूस के जज्बात का इजहार किया। मुफ्ती मोहम्मद नियाज अहमद कासमी ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस नवैयत की हौसला अफजाई खिदमत दीन के जज्बे को मज़ीद मजबूत करती है और दुआ की है कि अल्लाह ताला बाहमी मोहब्बत, अक़वात और भाईचारे के रिश्ते को हमेशा कायम रखे। मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल्स एसोसिएशन वरंगल तेलंगाना की जानिब से शाहीन जूनियर कॉलेज हनमकुंडा के ताउन से मंगल 30 दिसंबर 2025 को हयात महाराजा फंक्शन हॉल LB नगर वरंगल में SSC तलबा के लिए एक रोज़ा शानदार ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें MMS से वाबस्ता ज़ायद 40 स्कूल के तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर एसोसिएशन वरंगल के सदर खमर अली बेग, सेक्रेटरी अब्दुल क़य्यूम खाजान, मोहम्मद नसीरुद्दीन के अलावा मोहम्मद रिजवान और मुफ्ती मिनहाज मौजूद थे, जबकि DEO वरंगल बी रंगैया नायडू और TRSMA स्टेट जनरल सेक्रेटरी N रमेश राव ने भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान तेलंगाना स्टेट SCERT की रिसोर्स टीम ने
تعلیمی و رہنمائی سیشن پیش کرتے ہوئے طلبہ کو اعلیٰ تعلیم، مسابقتی امتحانات اور کیریئر کے مختلف مواقع سے متعلق جامع اور مفید رہنمائی فراہم کی، جسے طلبہ نے بے حد سراہا۔ محمد رضوان، شاہین جونیئر کالج. Under MMS we have conducted orientation program for the students, for their betterment, for the exam orientation. It is conducted by has around 40 plus schools, which is very successful, and from all the schools, the students have come here to gain the knowledge and prepare well for the exam. مسلم مینجمنٹ اسکولز ایسوسیشن ورنگل تلنگانہ ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن ہے۔ الحمدللہ ہمارے ورنگل سٹی کے اندر 40 سے بھی زیادہ ہمارے MMS کے اسکولس ہیں اور کئی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس۔ تو اس سے یہ جو ہے سو ٹرسما تلنگانہ ریکگنائز اسکولس مینجمنٹ ایسوسیشن کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے اسکول ایسوسیشن ایک پرانا ایسوسیشن ہے جو 1984 سے ایگزسٹنگ میں ہے اور ایک رجسٹرڈ ہے۔ تو مسلم مینجمنٹ اسکولس ایسوسیشن کا ایم اینڈ آبجیکٹو کیا ہے بولے ہمارے مسلمس کے بچے ایجوکیشن میں آگے آئے۔ ہمارے پاس کئی ایسے بچے پڑھ رہے ہیں، انڈر پریویلیج بچے پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے پاس بلو پاورٹی لائن کے بچے ایسے بچے پڑھ رہے ہیں۔ ہم ان کو فی کنسیشن دے کے، میرٹ اسکالرشپ دے کے جو ہم ان کو انکریج کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان کو 10 تک ہمارے پاس اچھی ایجوکیشن دیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلم مینجمنٹ اسکول ورنگل کی طرف سے SSC کے اسٹوڈنٹس کے لیے اورینٹیشن پروگرام رکھا گیا ہے، جس میں ماہرین تعلیم جو CRT کے گورنمنٹ کی طرف سے متعین ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئی۔ ہر سبجیکٹ پر سیر ہو کر انہوں نے گفتگو کی، بچوں کے ڈاؤٹس بھی کلیئر کیے، مختلف کانسیپٹس کو الگ الگ انداز میں سمجھایا۔ امتحان میں کیسا پرچہ آتا ہے، کس طریقے کا آتا ہے، کس طریقے سے پرچے کو سمجھنا چاہیے، لکھنا چاہیے، اور مختلف نوعیتوں سے کانسیپٹ جو الگ الگ ہو سکتے ہیں، اور سیر حاصل گفتگو ان حضرات نے کی، کافی فائدہ ہوا۔ الحمدللہ یہ پروگرام بہت ہی اچھے منظم انداز میں منعقد ہوا۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز، شاہین جونیئر کالج ورنگل کی طرف سے اس کو اسپانسر کیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ اس سے کافی فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مستقبل کو مزید روشن کریں گے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ سال نو کی تقاریب میں پولیس کی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے، بصورت دیگر سخت کارروائی کی جائے گی، کمشنر پولیس VC سجنار کا انتباہ۔ شہر کی جامع ترقی کا منصوبہ تیار کیا جائے، 5 سالہ ایکشن پلان بنانے پر زور۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا زونل کمشنران کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ سرکاری ملازمین کے زیر التوا بلز کے 713 کروڑ روپے کی اجرائی، ڈپٹی CM بٹی وکرمارگا کی ہدایت پر فائنانس ڈپارٹمنٹ نے کی بلز کی عملداری۔ تلنگانہ میں SIR کروانے کا ریاستی بھاجپا صدر رام چندر راؤ کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ، ووٹر لسٹ میں پاکستانی و بنگلہ دیشی ناموں کی موجودگی کا کیا دعویٰ۔ درگم چیرو جھیل کے اطراف 5 ایکڑ اراضی سے ناجائز قبضے ختم، ہائیڈرا کی کارروائی، ان آربٹ مال کے قریب پارکنگ کے ذریعے ماہانہ 50 لاکھ روپے کی کمائی کی جانے والی زمین کی واپسی۔ خبرنامہ میں بس اتنا ہی۔ مزید تازہ ترین نیوز اپڈیٹس اور دلچسپ پروگرام کے لیے دیکھتے رہیں BBN چینل۔ ہمارے سوشل میڈیا چینلز کو سبسکرائب و فالو، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس
اور 3 اسٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 اسٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 اسٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس beside HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔